Hi everyone, welcome to yet another brand new session of this newly introduced series whose sole motive is to boost your preparation for the upcoming JEE Main 2022 exam. Well, today's session is session number 4 of Algebra, and the topics that I have picked up for today are matrices and determinants. Extremely interesting to study and extremely important from your examination point of view. Every single time, a minimum of 1 to 2 questions are always asked in the JEE Main paper from both these topics combined. And you know what? Most often than not, the level of the questions is easy to medium. So 8 marks approximately is the weightage of both these topics, which, mind it you guys, it's a huge deal. Got it? Now the good news is that you do not need to learn each and everything which is there in these chapters. No. You know what I've done? I have shortlisted a handful of 5, just 5 concepts from both these chapters combined. What we'll do is we'll very quickly breeze through each one of them, and then you will be amazed to see how, by just equipping yourself with the knowledge of these 5 concepts, you are able to solve so many previous year JEE Main questions. That too very insightful ones, that too very intriguing ones, that too very brainstorming ones. Oh yes. And that's the reason why I always say it's not about the quantity, it's about the quality of your preparation, which helps you maximize your score. Okay, so are you guys excited for today's class? Yes or no? Quickly tell me in the comments below. Hi Subhashri, welcome to the session. Good evening. Hello Priyanka. Hi Aakash, good to see you here. Yes, Archana, that's absolutely true. You ace these 5 concepts and you will realize how so many questions will be cracked by you. Okay. Hi, Ankit. Hello, Hypergaming. You are here today. Hello, Sudeepta. Hi, SV family. Welcome to the class. Let's see. For now, I guess because the boards were clashing with the dates, that's why they have revised the dates. I'm sure you are aware of it. But after that, I have not heard of any other changes in the dates. Hi, Jyoti. Good to see you. That's great. Yeah, that's great. Alrighty. Should we start? Should we get started? So, let's begin with the very first concept, which is matrix multiplication and transpose. Okay, just these 2 tiny concepts we will quickly understand, and then we'll attack very good quality questions. Okay, hi Archana, hello Priyanka, hi Parth, that's great to know. Yes Aakash, yes, beyond a point, it's the smart work which helps you get more and more marks. So, matrix multiplication. Let's say I have 2 matrices. Let's name them A and B. Now, I can actually, I can actually compute the product of both these matrices in 2 fashions. One is AB, other is BA. Isn't it? When I'm writing AB, that means I'm taking A as the first matrix and B as the second matrix. And when I'm saying BA, I'm taking B as the first matrix and A as the second matrix. Now, first matrix का एक और नाम होता है क्या? Pre-multiplier. Pre-multiplier. And second matrix का एक और नाम होता है post-multiplier. All right? So I think there's some glitch with the pen. Just give me 2 seconds. So A, as I said, is the pre-multiplier, and B, as I said here, is the post-multiplier. Got it? Let's say मैं AB compute करने में interested हूँ. The question is,
The question is 1 second. So there is glitch here. Yeah. Let's say I'm interested in computing AB. Can I say that AB always exists? Tell me, yes or no? Can I say AB always exists for any two matrices A and B? Just tell me a yes or a no. Can I always compute the AB product if I have any two random matrices A and B? Yes, Priyanka, that's what you feel? Is that a yes or a no from you guys? I want to know. No, no, no. Yes, Aakash, you are right. Jyoti, you're right. Subhashri, you are not right. क्या होता है ना कि A into B सिर्फ और सिर्फ तभी exist करता है. AB exists when the number of columns in the pre-multiplier is equal to the number of rows in the post-multiplier. Just give me 2 minutes, guys. Let me fix this and I will be back. Give me 2 minutes.
Okay, people, I'm back. Yeah, Devendra, actually, there was this glitch which occurred and I was just busy fixing it. And now it's all sorted. So let's resume. Let's quickly resume. So as I said, these are the 5 concepts that we will be acing today. And based upon them, just based upon these 5 concepts, you will be able to solve so many questions. So beginning with the first one, as I said, is matrix multiplication and transpose. Here it comes. जैसे कि मैं बोल रही थी, let's say I have 2 matrices A and B, then मैं इनका प्रोडक्ट 2 शक्लों में निकाल सकती हूँ, either AB or BA. When I say AB, I'm treating A as the first matrix, B as the second matrix, and when I'm saying BA, I'm treating B as the first matrix and A as the second matrix. Let's say I am interested in computing AB product. Okay, AB product, wherein A is sitting first, that means it is the pre-multiplier, and B is sitting second, which means it is the post-multiplier. So as I was asking, is it possible with any 2 random matrices A and B to always get AB? To always get AB? And the answer was no. The answer was a big fat no. Well, AB exists as a valid matrix only and only when the number of columns in the pre-multiplier is equal to the number of rows in the post-multiplier. समझ में आया? Very important condition. यानी कि अगर A का ऑर्डर है M क्रॉस N और B का ऑर्डर है let's say P क्रॉस Q, तो AB will exist as an individual product matrix if and only if number of columns in A is equal to number of rows in B. Yes, and hypergaming is definitely correct कि अगर AB exist करता है, it may not always imply that BA will also exist. Okay, in general, AB and BA are not equal. I'm sure you know about this. Multiplication in matrices is not commutative. But even stronger than that, a piece of information which you must have is कि AB exist कर सकता है और उसी situation में हो सकता है BA exist ना करे. Cool? Yes, sorted? अब देखो कैसे कंप्यूट करते हैं AB. एक बार पता चल गया AB एग्जिस्ट करता है, तो अब AB को निकालेंगे कैसे? इस रूल से कि भाई AB मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ith रो ऑफ द प्री मल्टीप्लायर विथ jth कॉलम ऑफ द पोस्ट मल्टीप्लायर. ओके, ith रो ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने A के कॉलम है, मतलब कि n. और jth कॉलम ऑफ B में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने B में रोज हैं, मतलब कि P. और ये दोनों तो बराबर है ना, राइट? इसीलिए इट मेक्स सेंस फॉर अस टू से दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई ith रो ऑफ A विथ jth कॉलम ऑफ B, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी. तो आप कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके उनका सम करते हैं और उससे आपको एक रियल नंबर मिलता है विच represents द ijth एंट्री ऑफ द AB matrix. Got it? Yes, so this was about matrix multiplication. And next that you need to be aware of is transpose of a matrix. So as this says, the matrix obtained by interchanging the rows and the columns of any given matrix A is called its transpose. Basically, suppose एक matrix है जिसमें let's say row 1, row 2, row 3, row 4. 4 rows हैं और 2 column हैं, column 1 and column 2. एक इस शक्ल की मैट्रिक्स है. अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम और फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम, और पहले कॉलम को पहली रो, दूसरे कॉलम को दूसरी रो, तो भाई ए जो मैट्रिक्स थी वो तो 4x2 ऑर्डर की थी. और अब जब मैंने रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए हैं तो मुझे एक न्यू मैट्रिक्स मिल गई है विच इज ऑफ ऑर्डर 2x4, क्योंकि अब इसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं. ये मैट्रिक्स है ए का ट्रांसपोज. समझ में आया? तो आप किसी भी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं. व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट इफ ए इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, इट्स ट्रांसपोज विल बी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m.
जितनी ए में रोज उतनी ट्रांसपोज में कॉलम, जितनी ए में कॉलम उतनी ट्रांसपोज में रोज. ऑल्सो बट ऑब्वियस टू रियलाइज कि ए ट्रांसपोज की ijth एंट्री क्या होगी? ए की jith एंट्री. Isn't it? ए की jith एंट्री. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटू सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आई थिंक उसी से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. सपोज ए के अंदर है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. It's a general 3x3 matrix, correct? करेक्ट. अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम. करेक्ट. अब मुझे बताओ कि दिस इज ऑल्सो 3x3 मैट्रिक्स. करेक्ट. मुझे बताओ कि ए ट्रांसपोज का 2/3 एंट्री क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम पे ये बैठी है. Right? What is this? A32. This is A transpose's 2/3 entry. But technically this is A की 3/2 entry. Correct? तो देख रहे हो 2 और 3 swap हो गए. इसीलिए मैं in general आपको ये बता रही थी कि A transpose की ijth entry is nothing but A की jith entry. Got it? Yes. And now let's take a look at this question. सिर्फ इतना सा पता होना जरूरी था and this question will be in your pocket. It says A is a symmetric matrix of order 2 with integral entries. If the sum of the diagonal elements of A square is 1, what is the possible number of all such matrices? Come on guys, quickly solve. Quickly solve. Symmetric matrix के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको. A matrix is said to be symmetric when it is equal to its transpose. So please write this down. Symmetric matrix is one which is equal to its transpose. यानी अगर मैं एक general 2x2 matrix लूं, A1, A2, B1, B2, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? A1, A2 and then B1 and then B2. इनकी इक्वालिटी को देख के आपको क्या समझ आता है? भाई ये A1 और ये A1 तो बराबर है, ये B2 और ये B2 तो बराबर है, चिल है. लेकिन यहां से ये समझ आता है कि यार A2 और B1 बराबर हैं. Isn't it? A2 is equal to B1. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ if A2 is equal to B1? That means non-diagonal entries match. Isn't it? Non-diagonal entries match. That means they are same. मतलब मैं in general ये कह सकती हूँ, which is something that you must take a note of. You must take a note of कि भाई with respect to main diagonal, the entries match or the corresponding entries match. With respect to the main diagonal, the corresponding entries match. They are symmetric basically. समझ में आया? तो मैं कह सकती हूँ कि Aij is equal to Aj for every I not equal to J whenever capital A is symmetric. तो इस सेंस में अगर मैं आपको एक 3x3 मैट्रिक्स दूँ, ठीक है? Let's say I write A, B, C, D, E, F, G, H, I और मैं कहूँ कि ये सिमेट्रिक है. लेट्स से मैं कह रही हूँ कि ये सिमेट्रिक है, तो आप एक्चुअली में क्या इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि कौन सी एंट्रीज बराबर होंगी? क्विकली टेल मी. If this is a matrix A which is 3x3 and it is symmetric, what all entries will be equal to each other? मैंने अभी आपको बताया with respect to the main diagonal, the principal diagonal, the entries are symmetric or the corresponding entries match. अब principal diagonal है ये, इसमें 1/1th एंट्री बैठी है, 2/2th एंट्री बैठी है, 3/3th एंट्री बैठी है. करेक्ट? यस, ज्योति सेज A, E and I. Yes, that's the main diagonal. इसके रिस्पेक्ट में बची हुई एंट्रीज सिमेट्रिक होंगी एक दूसरे के. मतलब 1/2th एंट्री विल बी इक्वल टू 2/1th एंट्री. ये है 1/2th एंट्री, ये है 2/1th एंट्री, दे विल बी इक्वल. ठीक है? 1/3th एंट्री विल बी इक्वल टू 3/1th एंट्री. मतलब C विल बी इक्वल टू G.
and 2/3 entry will be equal to 3/2 entry. Yes, मतलब F will be equal to H. आया समझ में? मतलब शक्ल कैसी दिख रही है? अगर ये B है तो भाई यहाँ पे भी B होगा, ये C है तो यहाँ पे भी C होगा और यहाँ पे भी F होगा. G is equal to C, F is equal to H, B is equal to D. Very very good. Got it? तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करना है? एक 2x2 ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स को. क्या शक्ल होने वाली है उसकी? A B B C. Isn't it? Isn't it? डायगोनल एंट्रीज में A और C है और नॉन डायगोनल एंट्रीज मैच कर रही हैं B और B. ऑब्वियस सी बात है, अगर A ट्रांसपोज के बराबर है मतलब A का ऑर्डर क्या है? M क्रॉस N. A ट्रांसपोज का क्या होगा? N क्रॉस M. They both are equal. That means M will be equal to N. That's why only and only square matrices have the power to be symmetric. Got it? समझ में आ गया? तो ये मेरा इन जनरल लुक है A मैट्रिक्स का. इसमें इंटीग्रल एंट्रीज बैठी हैं, मतलब A, B और C सबके सब सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं. Cool. If the sum of the diagonal elements of A square, can you compute A square? Yes, of course. ABBC into ABBC. Let's quickly compute. A square plus B square. Correct? Then AB plus BC. Then AB plus BC again. And then B square plus C square. नॉन डायगोनल एंट्रीज में कंप्यूट नहीं भी करती तो भी चलता, क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर, इनका जब मैं सम कर रही हूं तो मुझे 1 मिल रहा है. मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. Isn't it? Isn't it? Can you tell me the answer for this, people? You have a square plus 2b square plus c square equals 1. You have to tell me the number of solutions of this equation in the set of integers. क्योंकि strictly जो a, b, c quantities हैं वो set of integers को belong करती हैं. Alrighty. Now just realize a square is non-negative, 2b square is non-negative, c square is non-negative. यहाँ पे 2b square जो है क्या उसको वैनिश नहीं होना पड़ेगा हमेशा? डोंट यू थिंक अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 चाहिए तो ये 2b स्क्वायर क्वांटिटी को वैनिश होना पड़ेगा, क्योंकि b स्क्वायर को अगर मैं 1 रखूं, बेसिकली b को अगर मैं 1 या -1 भी रखूं तो यहां से इफेक्टिवली मुझे 2 मिलता है. b को मैं कुछ भी रखूं नॉन जीरो, मुझे आंसर 2 या 2 से बड़ा मिलता है. तो लेफ्ट हैंड साइड कभी भी 1 के बराबर नहीं आ पाएगा अगर ये 2b स्क्वायर क्वांटिटी एक्टिवली वहां बैठी हुई है. राइट? एंड इफ आई वांट इट टू वैनिश दैट मींस b को मैं नॉन जीरो नहीं, b को मैं 0 ही रखूंगी हर बार. यस आकाश. ऑल राइट. सो b स्क्वायर विल ऑलवेज बी 0, दैट मींस b विल ऑलवेज बी 0. b तो चलो 0 हो गया. a को अगर 1 रखा और c को 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ जाएगा. b को तो हमेशा ही 0 रखना है. a को अगर मैं -1 रखती हूँ और c को 0 रखती हूँ तब भी पर्पस सॉल्व्ड. -1 का स्क्वायर इज सेम एज 1 का स्क्वायर विच इज 1. सिमिलरली b तो हमेशा ही 0 है. a को 0 रख के c को 1 रखती हूँ या फिर a को 0 रख के c को -1 रखती हूँ तब भी चलेगा. तब भी चलेगा. राइट? सो दीज आर दी ओनली 4 सॉल्यूशंस. मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टू देम जो आपके पास 4 मैट्रिसेस आ रही हैं वो आ रही हैं क्या? 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 and 0 0 0 -1. Correct? Yes, 4 is the correct answer, people, because there are only and only 4 such matrices. Got it? So people who said 4, kudos, C is the correct answer. Now let's move ahead to the next question. This one says total number of 3 cross 3 matrices A having entries strictly from this set. So the entries of the matrix A can either be 0 or 1 or 2 or 3, nothing else. Okay, Ansh, from now on please focus and grab your pen and notebook and start solving with a lot of attention as I said. Okay, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो मैं दोबारा repeat नहीं करूंगी. While solving the question only I will repeat the concept. Alrighty, so please start now. Sum of all the diagonal entries of AA transpose is 9. Are you understanding? तो अपने को AA ट्रांसपोज की डायगोनल एंट्रीज कंप्यूट करके उनका सम लेना है. ठीक है भाई. A की शक्ल क्या रखूं मैं? जनरल ABC.
XYZ DEF. लेट्स से मैंने ये A की शक्ल रख दी इन जनरल लुक. अपने को चाहिए A ट्रांसपोज. ठीक है भाई, तो A तो लिखा हुआ है, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? टेल मी. फर्स्ट रो बिकम्स द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स द सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स द थर्ड कॉलम. समझ में आया? ये अगर A है तो ये है उसका ट्रांसपोज. कुछ नहीं किया मैंने, A की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, A की सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, A की थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया. ठीक है, गॉट इट? I want only the sum of diagonal entries of this product. तो मैं बाकी एंट्रीज निकालने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी. What will be the 1/1th entry here? A square plus B square plus C square. मुझे मतलब नहीं है बाकी दो एंट्रीज क्या है, यहां की एंट्री से भी मतलब नहीं है, यहां की एंट्री से भी मतलब नहीं है. What will be the 2/2th entry? X square plus Y square plus Z square. फिर मुझे यहां से मतलब नहीं है, यहां से मतलब नहीं है. What will be the 3/3th entry? D square plus E square plus F square. Isn't it? Isn't it? यानी कि ये जो तीनों एंट्रीज हैं, they are representing the diagonal entries of A transpose. इनका सम 9 चाहिए. Keeping in mind कि A, B, C, X, Y, Z, D, E, F, each one of them has to compulsorily come from the set S. Yes, इनका सम 9 गिवन है. तो यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर is 9. Now, this particular equation has how many solutions? How many solutions are there of this very equation? Please tell me. Provided X, Y, Z, A, B, C and D, E, F. They are individually bound to come from the set 0, 1, 2, 3. Is the answer 81? Anybody else agreeing with Priyanka? Come on, I want people to vote for the answer 81. Yes or no? देखो, अगर ये 1 हो गया, basically हर एक entry 1 हो गई, तो 1 is being added with itself 9 times will give you 9 as the answer. So one of the cases is that each entry is equal to 1. That means A की शक्ल कैसी दिखने वाली है इस केस में? 1 1 1 1 1 1 1 1 1. इस सिचुएशन में A ट्रांसपोज में डायगोनल एंट्रीज का सम 9 मिलेगा आपको. ठीक है, तो ऐसी एक ही मैट्रिक्स है, तो केस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आई एम गेटिंग ओनली वन आंसर, वन सच मैट्रिक्स. व्हाट अबाउट अदर केसेस? व्हाट अबाउट अदर केसेस? लेट्स से x 2 हो गया एंड y भी 2 हो गया, तो 4 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और z 1 हो गया, तो 9 आ गया ना. 4 plus 4 8 plus 1 9 and rest all the entries are 0. I am saying any two entries are 2 and any one entry is 1, rest all are 0. तो आंसर क्या मिलेगा? 4 plus 4 plus 1 which is 9. Right? Case 2 is any two entries are equal to 2 and one entry is 1, rest all 0. Yes, yes Priyanka. Are you understanding? तो अब 9 एंट्रीज में से मुझे किन्हीं दो को 2 से इक्वेट करना है. वो मैं कितने तरीकों से कर सकती हूं? 9C2, करेक्ट. एंड एक बार 2 एंट्रीज 2 बन गई तो बची कितनी? 7. 7 में से किसी एक को मुझे 1 करना है, तो 7C1. राइट, अब 3 यूज हो गई, 9 थी, बची 6. 6 में से सारी 6 को मुझे 0 करना है, तो 6C6. Correct? Are you understanding? So this comes out to be 9 factorial upon 2 factorial into 7 factorial multiplied by 7 factorial upon 6 factorial. This gets cancelled out. 9 factorial upon 2 factorial into 6 factorial. So these many are answers corresponding to case 2. Tell me more cases. Yes, Shravan, absolutely correct. Tell me if there are any further cases available. हैं? बताओ प्रियंका, बताओ बताओ.
अगर एक एंट्री को मैं 2 रखती हूं तो उसका स्क्वायर मुझे 4 देगा, राइट? मुझे क्या चाहिए 9 के लिए? 5 6 7 8 9, 5 1 की जरूरत है, तो 5 को 1 रख देती हूँ ना, और 3 को 0 रख देती हूँ. बेसिकली x को सपोज मैंने 2 रख दिया, y z a b c, इन 5 को मैंने 1 रख दिया, यस, एंड बाकी 3 को 0 रख दिया तो भी 9 आ जाएगा. ओके, yes, Aakash, perfect. That will be our case number 4. And Luca Simon, that's what I was talking about. Bang on, Jyoti, bang on Pratibha. तो केस 3 में मैं बोल रही हूं कोई एक एंट्री अपने को 2 रखनी है एंड 5 एंट्रीज 1 रखनी है एंड रेस्ट 0. ठीक, तो कोई एक एंट्री 2 रखनी है, 9 में से एक को 2 रख सकती हूं मैं 9C1 नंबर ऑफ वेज में से. अब बची 8 एंट्री, 8 में से 5 को तो अपने को 1 रखना है, 6 यूज हो गई, बची 3 में से 3 को 0 रखना है. यस, उत्सव, परफेक्ट, समझ में आया? ये हो गया अपना केस 3. एंड व्हाट अबाउट द लास्ट केस, केस 4, जिसके बारे में आई थिंक प्रतिभा एंड ज्योति आर एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो केस 4 क्या कहता है कि आप कोई एक एंट्री 3 रख लो, बाकी सबको 0, तो 3 का स्क्वायर 9 दे देगा ना, राइट? एनी वन एंट्री इज इक्वल टू 3 एंड रेस्ट इक्वल टू 0. तो 9 में से एक को 3 आप 9C1 नंबर ऑफ वेज में रख सकते हो, एंड एक बार एक एंट्री को आपने 3 रख दिया तो बची 8 एंट्रीज को आप 0 रख सकते हो इन 8C8 नंबर ऑफ वेज. सो दिस इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल. ओके, तो जो भी नंबर्स आपके चारों केसेस के अगेंस्ट आए हैं, केस 1 में आपका एक ही आंसर आया था, केस 2 में आपका आंसर आया 9, केस 3 में आया 252 एंड केस 4 में आया 504. चारों को आपको ऐड करना है and your final answer is 766. Is it? Yes or no, guys? 766 is the final answer. All right, got it? हर केस के corresponding हमने number of matrices निकाली, और फिर total number of matrices क्या होंगी? उनका union. Because either case 1 can happen, or case 2 can happen, or case 3 can happen, or case 4 can happen. Or means sum, right? That's why. You found it lengthy? Yeah, I can agree to it, क्योंकि थोड़ा सा thought process involved था कि कितने केस एक्चुअली बनेंगे, तो yeah, that might take time. Pratibha, very good. Aakash, Preetam, all righty, but did you understand? Did you understand the concept? Right? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the next question. A is a 2 cross 2 matrix and B is a 2 cross 1 matrix such that alpha is non-zero and beta is non-zero, and you are given AB is equal to B, A plus D is 2 0 2 1. What is the value of AD minus BC? डरना नहीं है, बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को अटैक करते हैं, ठीक है? जो जो गिवन है उस पर काम करेंगे और धीरे धीरे जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको अप्लाई करते रहेंगे. डोंट पैनिक, डोंट गेट एंशियस कि यार ओ माय गॉड इतनी सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या करें? Take a deep breath. Let's start. AB equals B. A क्या है? ये है. B क्या है? ये है. Equal to B मतलब फिर से ये. Correct? Yes, Shravan. अब इस सवाल पे आ जाओ. Great, Devanshi. Now just come to this question. Let's start. तो भाई A alpha plus B beta upon C alpha plus D beta is equal to alpha beta. Two matrices are same, that means their orders are same and their corresponding entries are equal. तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है? A alpha plus B beta is equal to alpha, and simultaneously C alpha plus D beta is equal to beta. Okay? अब मैं क्या करूंगी? जानबूझ के दोनों इक्वेशंस को मैं साथ में एक साथ सॉल्व कर पाऊं, आई विल क्रिएट अ कॉमन एक्सप्रेशन विच इज अल्फा बाय बीटा. तो दोनों इक्वेशंस को बीटा से डिवाइड करते हैं. मैं वो कर सकती हूं क्योंकि सवाल में मुझे दिया है कि बीटा नॉन जीरो है. रिमेंबर, तो मैं बीटा से दोनों तरफ डिवाइड करती हूं. आई विल गेट A टाइम्स अल्फा बाय बीटा प्लस B इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, एंड यहां आ जाएगा C टाइम्स अल्फा बाय बीटा प्लस D इज इक्वल टू 1.
लेफ्ट हैंड साइड से अल्फा बाय बीटा की क्या वैल्यू निकलेगी? ए अल्फा बाय बीटा माइनस, वेट, अल्फा बाय बीटा कॉमन, a minus 1 is equal to minus b. Correct? That means alpha by beta is coming out to be minus b upon a minus 1, मतलब b upon 1 minus a. And दूसरी इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है कि alpha by beta is equal to 1 minus d upon c. दोनों ही alpha by beta की वैल्यूज हैं तो इक्वेट कर लेते हैं. b upon 1 minus a is equal to 1 minus d upon c. BC is equal to 1 minus A into 1 minus D. BC is equal to 1 minus D minus A plus AD. अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? AD माइनस BC की. ठीक है भाई, ये आ गया BC माइनस AD is equal to, और rather A plus D is equal to 1 plus AD minus BC. ठीक है, तो AD minus BC is the required expression जिसकी वैल्यू अपने को चाहिए. एंड a प्लस डी की वैल्यू मुझे दी हुई है 2021, मतलब AD माइनस BC इज नथिंग बट 2021 minus 1 which is 2020. Isn't it? Guys, are you understanding? The answer to this question is 2020. Anybody who got this answer? Yes or no? 2020. Yes, Preetham. Yes, Luca, Aakash, Pratibha. बहुत बढ़िया. दीपांशु आ गया आंसर. Great job. Great job. Perfect. This was easy. Pretty easy. It's a past year JEE main question, guys. Just keep exploring the nature of questions, the concepts which are being used in the questions, क्योंकि आपको उन concepts पे ध्यान देना है while you are preparing. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड अपॉन प्रॉब्लम्स ऑन हायर पावर मैट्रिक्स. देखो बहुत आसान सा सवाल है. इफ P इज दिस 2x2 मैट्रिक्स, व्हाट इज P की पावर 50? व्हाट इज P की पावर 50? श्रवण, टेल मी. यस देवांश, एब्सोल्युटली करेक्ट. यहां आ जाओ. अपने को P की पावर 50 निकालने नहीं बैठना है, अपने को पैटर्न ऑब्जर्व करने की पावर लानी है. सो दिस इज P टू द पावर 1. व्हाट इज P स्क्वेयर? 1 0 half 1 into 1 0 half 1. What is this? 1 and then 0 and then 1. 1 is nothing but 2 times half and then again 1. C is the correct answer. क्या बात है आकाश, उत्सव, हाइपर गेमिंग, शहजाद, प्रीतम, बहुत बढ़िया यार. बैंग ऑन यू गाइस, बैंग ऑन. P क्यूब निकालोगे तो पता है क्या आएगा? 1 0 3 times 1 by 2 and 1. P4 निकालोगे तो 1 0 4 times 1 by 2 and 1. पैटर्न समझ आ रहा है? तो Pn निकालोगे, इट विल बी 1 0 n times 1 by 2 1. अपने को 50 चाहिए n की जगह, तो 1 0 50 times 1 by 2 means 25 and then 1. तो 1 0 25 1 very much sitting in option C. Yes, ऑप्शन देख के ही पता लग गया. That's absolutely correct. ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आते हैं where you can just explore the options and understand. क्या बात है ज्योति, क्या बात है सौरभ, मनीष, क्या बात है. Very good यार, very good. You guys are really slaying it. Do you like matrices so much? Is it your favorite, Narayan? Very good. So C is the correct option, you guys. Yes, Shravan. Now come to this question. Another one. Parag. Very good. Yes, Aakash. Observation skills are really important. चलो, number of elements in this particular set, इसका नाम S रख देते हैं, जिसके अंदर ऐसी matrices बैठी हैं 2x2 ऑर्डर की जिनकी शक्ल है A, B, 0, D, जहां पर A, B, D इस पर्टिकुलर सेट से आ रहे हैं एंड मैट्रिक्स से ये satisfying a condition that 1 minus A का whole cube is I minus A का whole cube is I minus A cube. ठीक है, तो I minus A का whole cube is equal to I minus A cube. इस कंडीशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एंड देखते हैं कैपिटल A आखिर सेटिस्फाई कर क्या रहा है. दिस कंडीशन हैज व्हाट इंटरप्रिटेशन इवेंचुअली. ठीक है,
I agree with you Preetam, absolutely agree with you. चलो I का क्यूब माइनस A का क्यूब माइनस 3IA मतलब A I माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB A माइनस B equals I माइनस A क्यूब. I क्यूब is same as I कट गया, A क्यूब कट गया. What are you left with? 3A times I minus A is null matrix. Correct? A times I minus A is null matrix. That means A minus A square is null or A is equal to A square. Got it? Got it? यानी कि कैपिटल A actually क्या satisfy कर रहा है कि it is equal to its square. Okay, तो I minus A का cube equals I minus A cube was just a complicated way of saying that A is equal to A square. इसीलिए इस condition को simplify करना first step में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. Now if A is equal to A square, that means A, B, 0D का square पहले तो निकाल लो. What is this? This is A square, AB plus BD, and this is 0, and this is D square. This is actually A square. तो जब मैं कहती हूँ कि A is equal to A square, that means A, B, 0, D, this is your A, is equal to A square, यहाँ पर A square, यहाँ पर D square, यहाँ पर 0 और यहाँ पे था AB plus BD. Correct? This is A square. Two matrices are equal. Yes, Saurabh. Two matrices are equal. That means their corresponding entries are equal. That means A is equal to A square and B is equal to AB plus BD and D is equal to D square. तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक साथ, तभी A square के बराबर आ पाएगा. That's what you are understanding. Hi Raghav. Hello Manish. Welcome to the class. Let's quickly solve this question. This means A into A minus 1 is 0. This means B common निकाल लूँ तो 1 minus A minus D is 0. And यहाँ से D into D minus 1 is 0. Correct? Okay. Now, please don't forget that A, B, D have to compulsorily come from this set. अब देखो यार, ध्यान से सुनना मेरी बात. अगर मैं A को 0 ले लूँ, please listen to me carefully. A यहाँ से या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. D यहाँ से 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. अगर मैं A को 0 ले लेती हूं तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाती है? B टाइम्स 1 माइनस D इज 0. और साथ में मैं काम करती हूं D को 1 ले लेती हूं. ठीक है, अगर D 1 हो गया मीन्स ये अंदर का ब्रैकेट पूरा 0 हो गया. अगर ये अंदर का ब्रैकेट ही 0 हो गया तो B तो कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना, उसका मल्टीप्लीकेशन विद 0 विल गिव मी 0. तो B कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ -1, 0 और 1. आई डोंट केयर. Right? Did you understand? Similarly, अगर मैं A को 0 ना रख के 1 रख दूं, अगर मैं A को 1 रख दूं और साथ में D को 0 ले लूं, अगर मैंने A को 1 रखा तो क्या आएगा? ये B into minus D is 0. मैंने अगर D को 0 ले लिया मतलब ये अंदर का ब्रैकेट 0 हो गया. अब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये B क्या है. B 0 हो ना हो, D तो 0 है ही ना, तो B into D तो आंसर 0 ही देगा. तो B मुझे फर्क नहीं पड़ता, -1 हो, 0 हो या 1 हो, इक्वेशन तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी. करेक्ट? करेक्ट? यस लूका, परफेक्टली गिवन आंसर. लेकिन अगर मैं A को 0 लूं और D को भी 0 ले लूं, ठीक है, A को 0 लिया तो क्या बना? 1 माइनस D. और D को भी 0 ले लूं मतलब क्या आ गया? B इक्वल 0. और अगर मैं A को 1 लेती हूं और D को भी 1 लेती हूं, A को 1 लिया, D को भी 1 लिया, तो क्या आएगा? अगेन यस, B is 0. So how many solutions you are getting? How many answers you are getting? Narayan, 9 is the answer. 3 तो यहां से मिल रहे हैं, 3 यहां से मिल रहे हैं, 6, 7, 8. 9 नहीं, 8 is the answer. Okay, did you understand? Not 11 Narayan, it's 8. पहले केस से 3 मिल रहे हैं, A0 D1 B0, A0 D1 B1, A0 D1 B-1, ये 3 है. ऐसे ही दूसरे केस में भी 3, तो 3 3 6, तीसरे केस से 1 तो 7, चौथे केस से 1 तो 8.
Priyanka, yes. Sahil, not 5 बच्चे, it's 8. Yes, Aakash, it's 8. Saurabh, you understood? Hi, Sonu, yes, it's 8. Alright, so your correct answer for this question is nothing but 8. You have 8 possible elements sitting in this particular set. 8 ऐसी matrices A बन सकती हैं. Yes, Genius Vlogs. What a name, यार. What a name. चलो इस सवाल पे आते हैं. Very, very beautiful question, you guys. So just absorb the beauty of it. It says there is a 3 cross 3 matrix. ये A की power 1 है. ठीक है. It satisfies the equation a to the power 20 plus alpha times a to the power 19 plus beta a is equal to a square, which is this matrix, for some real numbers alpha and beta. You have to find them out and compute beta minus alpha. Yes, you can do that hypergaming. Not a problem. इस वाले सवाल में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको a की शक्ल दी हुई है और a स्क्वायर की शक्ल दी हुई है. ठीक है. एंड a की पावर 20, a की पावर 19 की बात की गई है. मतलब आपको a की ऑड पावर और a की इवन पावर के लिए पैटर्न एक्सप्लोर करना है, पैटर्न निकालना है ना. समझ में आया? पैटर्न निकालना है. तो a की पावर 1 क्या कह रहा है? 1 0 0 0 2 0 3 0 माइनस 1. जब आप a क्यूब निकालोगे ना तो आपको मिलेगा 1 0 0 0 2 की पावर 3 0 3 0 माइनस 1. समझ में आ रहा है? a की पावर 1 में 2 की पावर 1 है, a की पावर 3 में 2 की पावर 3 है, a की पावर 5 में 1 0 0 0 2 की पावर 5 0 3 0 माइनस 1. समझ में आया? ये चलता रहेगा. सिर्फ और सिर्फ 2th एंट्री अफेक्ट होने वाली है इस पावर से when the power is odd. And what happens when the power is even? देखो a स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 1 0 0 0 4 0 0 0 1. अगेन 4 नहीं, इसको 2 स्क्वायर की तरह देखो. तो when power is 2, you are getting 2 का स्क्वायर. a की पावर 4 क्या होगा? 1 0 0 0 2 की पावर 4 0 0 0 1 guys. When power is 4, you have 2 की पावर 4. Okay? यानी कि अगर k ऑड है, अगर k ऑड नेचुरल नंबर है तो शक्ल क्या होगी? 1 0 0 0 2 की पावर k 0 3 0 माइनस 1. दिस इज व्हेन k इज ऑड. एंड व्हेन k इज इवन, तब शक्ल क्या होगी? 1 0 0 0 2 की पावर k 0 0 0 1. दिस इज व्हेन k इज इवन. ठीक है, इतना समझ आया? यानी कि a की पावर 20 कैसे दिखने वाला है? कैन यू टेल मी? a की पावर 20 विल बी 1 0 0 0 2 की पावर 20 0 0 0 1 प्लस अल्फा टाइम्स a की पावर 19 कैसा दिखेगा? 1 0 0 0 2 की पावर 19 0 3 0 माइनस 1 प्लस बीटा टाइम्स a, मतलब बीटा 0 0 0 2 बीटा 0 3 बीटा 0 माइनस बीटा, है ना. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर जिसकी वैल्यू दी हुई है 1 0 0 0 4 0 0 0 1. Are you understanding? We have to solve this equation. ध्यान से देखो, ये जो 1 है ये किसके बराबर है? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा. 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज 1. अलॉन्ग विथ दैट ये वाला 4 किसके बराबर है? 2 की पावर 20 प्लस अल्फा टाइम्स 2 की पावर 19 प्लस 2 बीटा इज 4. यस प्रियंका, नाउ वी जस्ट हैव टू इक्वेट. यस, ऐड करके कंपेयर करो. और आपको एक्सट्रीम राइट में जो मैट्रिक्स बैठी है उसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज एक्टिवेट हैं, बाकी सब तो जीरो है ना. तो सिर्फ उन डायगोनल एंट्री से कॉरेस्पॉन्डिंग आप इक्वेशंस ऑब्टेन करो. सिर्फ उन डायगोनल एंट्रीज वाली एंट्रीज को कंपेयर करके इक्वेट करो. ठीक है? ऐसे ये 3th एंट्री देखो, ये 1 है, किसके बराबर होगी? ये 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा. करेक्ट? पहली इक्वेशन से आपको क्या मिलता है? इस वाली से कि अल्फा प्लस बीटा इज 0. इससे क्या मिलता है?
अगेन अल्फा प्लस बीटा इज 0। मतलब एक चीज तो मुझे पता चल गई कि अल्फा प्लस बीटा इज 0 और बीटा आई कैन से इज माइनस अल्फा। इसके इस्तेमाल करूंगी मैं इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई और रादर सॉल्व करने के लिए। -2 इज द आंसर। ओके, 2 की पावर 20 प्लस अल्फा टाइम्स 2 की पावर 19 प्लस अल्फा टाइम्स 2 की पावर 19, देन यू हैव +2 बीटा। तो मैं +2 बीटा ना लिख के -2 अल्फा लिखती हूँ क्योंकि बीटा इज नथिंग बट माइनस अल्फा, इक्वल टू 4। तो 2 की पावर 20 को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस अल्फा बाहर, 2 की पावर 19 -2 इक्वल्स 4। 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर। ये हो गया 2 की पावर 20 -2 स्क्वायर इक्वल्स माइनस अल्फा टाइम्स 2 की पावर 19 -2 नीचे ले आते हैं। करेक्ट, न्यूमरेटर से एक 2 कॉमन निकालती हूं तो अंदर बचता है 2 की पावर 19 -2। ये हुआ कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आई -2, बीटा वाज नथिंग बट माइनस अल्फा मतलब कि 2। तो बीटा माइनस अल्फा मींस 2 -2 यानी कि 4, यानी कि 4। सुमित, वी आर कमिंग टू दैट टॉपिक एज वेल। अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। The answer to this question is nothing but 4। अल्फा की वैल्यू -2 आई है, अपन को सवाल ने अल्फा नहीं पूछा था, बीटा माइनस अल्फा पूछा था। Yes, so beta minus alpha will be 4 because alpha is -2 and beta is equal to 2. Perfect. Saurabh, Aakash, Genius Vlogs, very good. Alrighty. Moving ahead to this question, again very intriguing, very insightful and it will teach you so much. एक सवाल बहुत कुछ करवा देगा आपसे, बहुत 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 कुछ करवा देगा। Let's see. Look at matrix A. You have to talk about M, which is A plus A square plus AQ plus and so on till A to the power 20. What is the sum of all the elements of matrix M? है ना? है ना? What is A? A की पावर 1 तो आपको दिया हुआ है। What is A square? Can you quickly compute A square? Quickly. Yes, Ashish, 4 was the answer to the previous question. Now come to this question. This is very important. इसमें क्या क्या यूज हो जाएगा ना, अभी आपको समझ आएगा थोड़ी सी देर में। A स्क्वायर की बात करूं मैं तो मेरे पास आएगा 1 2 3 0 1 2 0 0 1। Yes, Priyanka, but what exactly is something that you need to decode very carefully, very carefully. ऐसे ही आप एक क्यूब निकालेंगे ना तो आपके पास आएगा 1 3 6 0 1 3 0 0 1। Just tell me if you guys are getting these as the values. एक और लिखती हूं मैं, फिर I want somebody to tell me the pattern. ठीक है, A की पावर 4 आएगा 1 4 10 0 1 4 0 0 1। Anybody? Anybody? Tell me. Tell me quickly, is there any pattern that you are able to decode right now? मैंने एक क्यूब लिख दिया है, A की पावर 4 लिख दिया है। किसी भी एंट्री को लेके समझ आ रहा है? Okay, Priyanka says diagonals are same equal to 1. That is true. What about other entries? What about other entries? देखो, पावर में 2 है तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। 1 2th and 2 3th entry, both is 2। 5 ऐड करेंगे, ठीक है। And what is this 3? This is sum of first 2 natural numbers, isn't it? Similarly, देखो जब पावर 3 है तो यहां भी 3, यहां भी 3। And what is 6? Sum of first 3 natural numbers, 1 plus 2 plus 3, isn't it? जब पावर में 4 है तो यहां भी 4, यहां भी 4। And what is this? Sum of first 4 natural numbers. इसीलिए अगर मैं A की पावर K लिखूंगी तो वो क्या आएगा? डायगोनल में थ्रू आउट 1, दैट इज ट्रू। उसके नीचे सब कुछ 0,
That is true. What about this entry? It will be k. What about this entry? This will be k. And what about this entry? What about this entry, the question mark entry? It will be sum of first k natural numbers. Anybody? Anybody who can tell me what is the expression? What is the answer for sum of first k natural numbers? I am waiting and I am going to wait. Yes, Priyanka, now tell me the value. Sum of first k natural numbers. पढ़ के आयो? पढ़ के आयो कि नहीं? Yes, Aakash, Veena, Narayan, bang on you guys. Kudos, great job, pat your back. शायद थर्ड या सेकंड सेशन में आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, लेकिन हमने बात की है सम ऑफ स्पेशल सीरीज की, जिसमें हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स पढ़ा था. लूका, जय श्री कृष्णा, अल्तमश, प्रियंका, विक्रम, दानिश, सबको याद है एंड आई एम सुपर ग्लैड टू सी दैट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया k plus 1/2. ठीक, अपने को क्या करना है? अपने को m चाहिए बॉस, अपने को m चाहिए. m इज व्हाट? a plus a square till a की पावर 20, मतलब समेशन a की पावर k गोइंग फ्रॉम 1 to 20. एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज बहुत ध्यान से देखो. m मैंने अभी कहा इट इज समेशन a की पावर k रनिंग फ्रॉम 1 to 20, और a की पावर k है क्या? 1 1 1 0 0 0, यहाँ भी k और यहाँ k plus 1/2. इस मैट्रिक्स को खुद से ऐड करना है 20 बार. इस मैट्रिक्स को खुद से ऐड करना है 20 बार, मतलब हर एंट्री को खुद से ऐड करना है 20 बार. Corresponding entries will get added with themselves 20 times. Right? यानी मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? Summation 1 k going from 1 to 20, 1 will get added with self 20 times. ऐसे ये वाला k भी ऐड होगा खुद के साथ 20 बार. फिर ये क्वांटिटी भी खुद के साथ ऐड होगी 20 बार. ये क्या है? k²/2 plus k/2, तो 1/2 बाहर निकाल देते हैं. समेशन k² k going from 1 to 20 प्लस समेशन k going from 1 to 20. है ना? है ना? ये वाला 0 तो खुद के साथ 20 बार ऐड होगा तो 0 ही रहेगा. यहां पर आएगा समेशन 1, यहां पर आएगा समेशन k, फिर ये भी 0, ये भी 0, यहां आएगा समेशन 1. है ना? ये जो m मैट्रिक्स है ना, इसमें 9 एंट्रीज बैठी हैं. हमें इन 9 का सम चाहिए, हमें इन 9 का सम चाहिए. राइट? राइट? 9 में से देखो, ये तो 0 हो गई, ये तो 0 हो गई, ये तो 0 हो गई. इफेक्टिवली दे विल कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग टू द सम. बची 6 एंट्रीज. 6 में से ये 3 सेम है, ये 3 डायगोनल एंट्रीज सेम है. व्हाट आर दे इक्वल टू? समेशन 1 I गोइंग फ्रॉम, और रादर k गोइंग फ्रॉम 1 to 20. 20 बार 1 को खुद के साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा ना. तो 3 बार तो अपन ने 20 ऐड करना है, 3 बार अपन ने 20 ऐड करना है. ठीक है, 6 एंट्रीज हो गई. 3 तो 0 थी, 3 समेशन 1 थी, तो इफेक्टिवली 6 एंट्रीज को ऐड करके मेरे को 3 बार 20 मिला है. बची 3 एंट्रीज, ये 2 समेशन k और एक ये वाली. तो समेशन k क्या होगा? समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to 20. व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स व्हिच इज 20 n plus 1, मतलब 21/2. दिस इज 210. तो 210 2 बार ऐड होगा. है ना? अब बची सिर्फ एक लास्ट एंट्री, ये वाली. What is its value? What is its value? Tell me. 1/2 times summation k² k going from 1 to 20, मतलब sum of squares of first 20 natural numbers. What is the formula for sum of squares of first n natural numbers? Anybody? Anybody? Sum of squares of first n natural numbers is equal to what? Tell me. Sum of squares of first n natural numbers. फटाफट लिखो, फटाफट लिखो. Typing skills should be very, very fast. Yes. Searching for the right answer. Priyanka नहीं. सौरभ नहीं. बलराम
बिक्रम नहीं. Aakash, perfect. n plus 1, 2n plus 1 by 6. n plus 1, 2n plus 1 by 6. Yes, Narayan. Got it? Yes, Preetam. ठीक है, तो ये होगा 20 into 20 plus 1, 2 into 20 plus 1 by 6. ठीक है, plus summation k, मतलब sum of first 20 natural numbers, which is 20, 21 by 2. तो एक बार ये क्वांटिटी ऐड होगी 1 by 2 times 20 into 21 into 41 by 6 plus 20 into 21 by 2. This is your answer. समझ में आया? समझ में आया अच्छे से? ओके, कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हो. समेशन 120 आया था, उसको हमने 20 को 3 बार ऐड किया. आशीष, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. 3 बार 20 को ऐड किया, फिर समेशन के को 2 बार ऐड किया, मतलब 210 को 2 बार ऐड किया. तो 3 बार 20, 2 बार 210 और एक बार 1540. आंसर इज, देखो 3 बार 20, 2 बार 210 और एक बार 1540. ठीक है. Prajin Raj. Okay, Prajin Raj is saying explain again. You can just rewind quickly and understand. I have no issues. You will understand it definitely. Yes, Aakash, 2020. Perfect. Yes, this was a question which kind of tested your knowledge about series as well, isn't it? Wasn't it insightful? I really loved this question. Too much. That's nice to know, Khushi. Welcome to the session. 2020, Sahil, not 2040. Okay? आगे बढ़ते हैं. Look at this question. फटाफट से यहाँ आ जाओ. S is the set जिसमें कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसका नाम लेट्स से मैं A रख देती हूँ. A की पावर n टाइम्स दिस दूसरी मैट्रिक्स इज गिविंग यू दिस दूसरी मैट्रिक्स. ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? A की पावर n मल्टीप्लाइड बाय सम मैट्रिक्स इज रिटर्निंग मी द सेम मैट्रिक्स. मतलब व्हाट इज दिस इफेक्टिवली? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. भाई इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना पड़ेगा ना, तभी तो ये किसी से भी मल्टीप्लाई होके वही मैट्रिक्स आंसर देगी. राइट सवाल पूछ रहा है किस n के लिए मेरी मैट्रिक्स A आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी. ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं n की, ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर वैल्यूज हैं n की, उसमें से भी मुझे डबल डिजिट वाली नेचुरल नंबर वैल्यूज चाहिए. समझ में आया? यस विक्रम, आइडेंटिटी. यस प्रीतम. यस उत्सव. यस सौरभ. तो A की पावर n इज कमिंग आउट टू बी आइडेंटिटी फॉर व्हाट n? दैट्स द क्वेश्चन. तो अपने को ना पहली बार ढूंढना है वो पहला नेचुरल नंबर जिसको A की पावर में रेस करके I मिल जाए. एक बार वो पहला नेचुरल नंबर मिल गया ना, तो उसके पॉजिटिव मल्टीपल्स मेरे बाकी सारे नंबर्स हो जाएंगे. करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट. लेट अस क्विकली स्टार्ट. A का स्क्वायर कंप्यूट करते हैं. 0i10 0i10. करेक्ट? I is your iota. Okay, this is I, this is 0, this is 0, this is I. Correct? A का क्यूब क्या होगा? Is this correct? 0 into 0, I into 1, and then 0 into I into 0, 1 into 0, 0 into 1, 1 into I, 0 into 0. All right. A square is I 0 0 I, मतलब A square into A. ये क्या आ रहा है? I into 0 0 into 1. I into I is -1. 0 into 0, I into 1, this is I, and this is 0. Okay? 12. No, Priyanka, n cannot be 0 because n is coming from the set of natural numbers. Okay, they start from 1 onwards. What about a to the power 4? It's a square into a square. Correct? What is this? I into I is -1, 0, 0, and then again -1. एक सेकंड ध्यान से सुनना. रुक जाना एक सेकंड यहाँ पे. Take a pause. What is this?
माइनस आई, इजंट इट? माइनस कॉमन निकाल सकते हो ना, माइनस आई है ये, और माइनस आई का स्क्वायर अपने को आई दे देगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि a की पावर 4 माइनस आई आ रहा है। यहां से मुझे हिंट मिल गई है कि भाई स्क्वायर बोथ साइड्स, a की पावर 8 विल गिव यू i फॉर द फर्स्ट टाइम, a की पावर 8 विल गिव यू i फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, यानी कि नेक्स्ट कब आई आएगा? 8 इंटू 2 16, देन 8 इंटू 3 8 के मल्टीपल्स, ओके। आई हैव स्टॉप्ड, आई एम नॉट राइटिंग मोर मल्टीपल्स ऑफ 8, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स चाहिए थे, वो सारे जिनको मैं a की पावर में रेस करूं तो मेरे को i मिले, और मिल गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and that's it, 10। 88 मिस हो गया मुझसे, 88 and then 96, so 11। फर्स्ट टाइम a की पावर रख के जो i मिला वो था 8, तो नेक्स्ट मिलेगा 8 का मल्टीपल, एनी मल्टीपल, करेक्ट? 11 is the answer, that's right Bikram, genius vlog, Preetam, Aakash, hyper gaming, perfect। 11 is the answer। there are 11 2-digit numbers, 2-digit natural numbers, जिनको यहाँ पे आप रखोगे तो this equation will get satisfied because a की power n i बन जाएगा। very good वैष्णवी, very good ज्योति, keep it up you guys, very good Bishan। आ गया समझ में श्रवण को भी? Perfect। Now let's move ahead and discuss the next concept, which is this। अब यहां पे छोटी सी चीजें ध्यान रखते हैं कि if any two rows or any two columns of a determinant are interchanged, then the value of the determinant just gets changed by a minus sign। ये पता है ना, ये पता है ना। सपोज मैं del1 एक डिटर्मिनेंट लेती हूं, ये वाला, एंड आई डिसाइड टू इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2, रो 1 इज इंटरचेंज्ड विथ रो 2। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पे नया डिटर्मिनेंट del2 आ जाता है। व्हाट इज del2's वैल्यू? मैं बैठ के कैलकुलेट नहीं करूंगी, आई एम नॉट सो स्टूपिड, आई एम अवेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। del2 ऑब्टेन कैसे किया है? del1 की रो 1 रो 2 इंटरचेंज करके, राइट? और इंटरचेंज एक बार करोगे तो एक माइनस साइन अटैच हो जाएगा, मतलब del2 की वैल्यू इज नथिंग बट माइनस del1। नो प्रियंका, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू फियर दिस टॉपिक, ठीक है? बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आप समझते जाओ और सवालों में अप्लाई करते जाओ। प्री कंसीव्ड नोशंस कई बार बहुत ज्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं। They are killer actually in your preparation, so don't think too much, don't overthink कि मुझे डर लगता है और मुझे घबराहट होती है, ये सब सोचो मत। समझते जाओ करते जाओ, समझते जाओ करते जाओ। Cool, let's move on to the next property। It says if elements of any one row or any one column are throughout multiplied by some non-zero constant, then the value of the new determinant also gets multiplied by the same constant। इसका मतलब ये है कि लेट्स से del1 मेरा ये डिटर्मिनेंट है, मैंने डिसाइड किया कि रो 1 को मैं क्या कर दूंगी, k टाइम्स रो 1 में कन्वर्ट कर दूंगी, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ रो 1 आई विल मल्टीप्लाई विथ k। तो न्यू डिटर्मिनेंट del2 क्या बना, ये देखो, उसकी रो 1 इज k टाइम्स द रो 1 ऑफ del1, तो del2 की वैल्यू क्या होगी, k टाइम्स del1। del2 इज नथिंग बट k टाइम्स del1। इससे मुझे ये भी समझ आता है कि आई कैन एक्सट्रैक्ट आउट a number common from any one row of a determinant or from any one column of a determinant। Got it? इसी का एक corollary समझ लो। Next, value of determinant is not altered by adding elements of any row or column with constant multiple of corresponding elements of any other row or column। मतलब in short, अगर आप किसी एक रो को दूसरी रो के स्केलर मल्टीपल के साथ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स द सेम एज इट वॉज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये del 1 है, मैंने डिसाइड किया कि आई विल ट्रांसफॉर्म रो 1 टू रो 1 प्लस पी टाइम्स रो 2, तो मैंने रो 1 को स्केलर मल्टीपल ऑफ रो 2 के साथ ऐड कर दिया, एंड दैट्स हाउ आई हैव चेंज्ड माय रो 1 टू क्रिएट दिस न्यू डिटर्मिनेंट del 2। तो del 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम एज del 1। आया समझ में? del 2 की वैल्यू विल बी सेम एज del 1। ऑल्सो वन लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट यू टू कीप अ नोट ऑफ इज कि कभी भी किसी एक डिटर्मिनेंट में ऑल एंट्रीज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रोज आइडेंटिकल हैं या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यस, हाइपर गेमिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर। काफी इजी सवाल है ये। 0, ओके। हाँ, अच्छा, ओके, 0 you guys are telling me about the determinant की property when rows are identical. That's right. Yes, Bikram, it is the classical property. बताओ यहाँ क्या करेंगे? You will tell me what operation can be beneficial here. Tell me. What operation do you think is absolutely beneficial here? Come on, quick, quick, quick. ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर। आई एम गोइंग टू परफॉर्म column 1 goes to column 1 minus column 2 and column 2 goes to column 2 minus column 3. Is this beneficial? Is this beneficial? Yes, you can go ahead and add row 1 and row 2 as well. उसमें sin square theta plus cos square theta equals 1 लग जाएगा and that will simplify the process. You can do that, but this is just one step thingy. देखो क्या हो रहा है. 1 plus sin square minus sin square gives you 1. And here you get minus 1, column 1 minus column 2 कर रही हूँ. And here you get a 0. Then column 2 minus column 3, 0. 1 minus 1. यहाँ पर sin square, cos square and 1 plus 4 sin 2x. ठीक है, ये 0 है. और अगर इसकी वैल्यू डेल है तो इसकी भी डेल है, क्योंकि हम अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि किसी भी रो को स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू ऑफ डेल पे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, लेट्स एक्सपैंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो. यू विल गेट 1 plus 4 sin 2x plus cos square. Okay, then you have plus sin square and 1, that's it, equals 0. Sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus 1 will give you 2. So you will get 4 sin 2x equals minus 2. मतलब sin 2x is minus 1 by 2. है ना? Yes, ये वाला ज़्यादा easy है, hyper gaming. That's right. ठीक है? अब इसको solve करते हैं. And please keep in mind the only interval you have to strictly adhere yourself to is the open interval 0 to pi. अब देखो sin 2x is minus half is negative. अपने को पता है जो 4 quadrants होते हैं, first, second, third and fourth, उसमें से sin is negative only in the third and the fourth quadrant. ठीक है, कैसे लिखते हो आप एंगल्स? यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा. थीटा इज दैट अक्यूट एंगल जिसपे साइन की वैल्यू हाफ होगी, मतलब 30 डिग्रीज, मतलब पाई बाय 6. तो रिस्पेक्टिवली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिल जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब 7 पाई बाय 6, और यहाँ मिल जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 11 पाई बाय 6. तो ये जो 2x एंगल है इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6. मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी 7 पाई बाय 12 एंड 11 पाई बाय 12. है ना? 3 and 4. Yes, third and fourth quadrant. That's perfect. B is correct. Yes, because both these values are very much lying between 0 and pi. ठीक है? आकाश, ज्योति, सौरभ.
ऑफ कोर्स नूरी, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. हम फटाफट से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं एंड देन सवाल पे आ रहे हैं. तो इवन इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड एंड यू आर एबल टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट एंड देन अप्लाई इट इन द क्वेश्चन, works, absolutely works. Now let's come to this question. It says AR is cos 2r pi by 9 plus iota times sin 2r pi by 9. मतलब मैं कह सकती हूँ कि cos theta plus iota sin theta is e to the power iota theta. तो AR क्या दिया हुआ है मुझे? e to the power iota times 2r pi by 9. करेक्ट. अपने को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए बॉस. A1 क्या होगा? A1 होगा e की पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई बाय 9. A2 e की पावर आयोटा टाइम्स 4 पाई बाय 9. A3 e की पावर आयोटा टाइम्स 6 पाई बाय 9. A4 e की पावर आयोटा टाइम्स 8 पाई बाय 9. ये होगा 10 पाई बाय 9. देन 12 पाई बाय 9. देन 14 पाई बाय 9. देन 16 पाई बाय 9. देन 18 पाई बाय 9. है ना? यस, ऑयलर फॉर्म. प्रीतम, वेरी गुड. ये दिख रहा है सबको? अब फर्स्ट रो से मैं e की पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई बाय 9 कॉमन निकाल सकती हूँ. निकाल सकती हूँ. ठीक है भाई. e की पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई बाय 9 कॉमन निकाल के अंदर बचता है 1. e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 9 और यहां e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 9. करेक्ट. दूसरे वाले रो से मैं e की पावर आयोटा 8 पाई बाय 9 कॉमन निकाल सकती हूँ. बचता है 1. e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 9, e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 9. तीसरी रो से मैं e की पावर आयोटा 14 पाई बाय 9 कॉमन निकाल सकती हूँ. बचता है 1. e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 9, e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 9. जस्ट ईशान, which step did you not understand? कुछ नहीं किया है. A1, A2, A3 एंड सो ऑन की जगह हमने ये डेफिनेशन के हिसाब से वैल्यूज डाली हैं और हर रो से मैंने पहली एंट्री को कॉमन निकाला है. तो रिस्पेक्टिव बची हुई एंट्रीज अंदर बैठी हुई हैं. ध्यान से देखो. फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल टू द सेकेंड रो, है ना? या फिर फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल टू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल टू सेकेंड रो इज आइडेंटिकल टू द थर्ड रो. बेसिकली तीनों रोज सेम है ना यार. तीनों रोज सेम है और कभी भी कोई दो रो आइडेंटिकल होती हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. क्लासिक प्रॉपर्टी अभी विक्रम ने याद दिलाई थी हमें, है ना? तो 0 इज द आंसर. 0 इज द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. पर 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं बैठा है. मतलब आपको इन चारों वैल्यूज को निकाल के देखना पड़ेगा कि 0 किसकी वैल्यू आ रही है. एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि पहली वाली ही 0 दे देगी. पहली वाली ही 0 दे देगी. बिकॉज A1 टाइम्स A9 मतलब e की पावर आयोटा टाइम्स 2 पाई बाय 9 इंटू e की पावर आयोटा टाइम्स 18 पाई बाय 9. ये आ गया A1 इंटू A9 माइनस A3 क्या होगा? e की पावर आयोटा टाइम्स 6 पाई बाय 9. A7 क्या होगा? e की पावर आयोटा टाइम्स 14 पाई बाय 9. सो दिस इज ऑल्सो e की पावर आयोटा टाइम्स 20 पाई बाय 9. And this is also e की पावर iota times 20 pi by 9. Answer is 0. A, ma'am. Yes, A is the right answer, people. Ishan, you can please rewind, okay, later on, because I am running out of time, so I cannot just spend again this much time to explain the question. You can quickly rewind once the session is over and you'll understand. एक बार पेन उठा के तसल्ली से solve कर लेना, समझ आ जाएगा. बहुत ही easy question है. ठीक है? Got it? Let's now move ahead to the next topic, which is system of linear equations. चलें आगे. OP question. Okay. All right. तो आप देख रहे हो कैसे कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, राइट? Isn't that really beautiful? कि किस तरीके से चैप्टर्स इंटरलिंक हो जाते हैं एंड they just make the question beautiful of a different level altogether. है ना? Yes, श्रवण. ठीक है. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे आते हैं. 2-3 चीजें जो याद रहनी चाहिए और सवाल बन जाएगा. बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे, प्रूफ में नहीं घुसेंगे. सिर्फ 2-3 चीजें फिंगर टिप्स पे याद रखो एंड यू विल बी एबल टू क्रैक ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेन फ्रॉम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. देखो, अगर आपके पास 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कैपिटल ए इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स.
कैसी दिखती है ये? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है? तो ये कोफिशिएंट कोफिशिएंट कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट से पहली रो बनी, y के कोफिशिएंट से दूसरी रो बनी, z के कोफिशिएंट से तीसरी रो बनी. दिस इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स. यस, क्रेमर्स रूल. Capital X is your x, y, z and B is your D1, D2, D3. The right hand side column matrix. तो इस पूरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं लिख सकती हूं AX equals B in short. ठीक है? इस सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपसे सवाल पूछा जाता है, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड. आपके पास 4 क्वांटिटीज होती हैं जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एक है डेल, एक है डेल एक्स या फिर डेल 1, डेल वाई या फिर डेल 2, डेल जेड या फिर डेल 3, कुछ भी बोल सकते हो इसको. इसको मैं D1 भी कहती हूँ कई बार, इसको D2 और इसको D3, एंड डेल को मैं कई बार D भी बोलती हूँ. व्हाट इज D या डेल? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. गॉट इट? What is del x या del 1 या फिर D1? जब आप del के पहले कॉलम को राइट हैंड साइड कॉलम से रिप्लेस करते हो, जब आप del के पहले कॉलम को D1, D2, D3 से रिप्लेस करते हो तो del 1 मिलता है. जब आप del के सेकंड कॉलम को D1, D2, D3 से रिप्लेस करते हो तो del 2 मिलता है. जब आप del के थर्ड कॉलम को D1, D2, D3 से रिप्लेस करते हो तो del 3 मिलता है. Yes, Bikram. Perfect यार. I mean, high five. ठीक है? अब प्लीज कीप इन माइंड, अगर D1, D2, D3 तीनों जीरो नहीं है, स्टार्ट लिसनिंग, D1, D2, D3 तीनों जीरो नहीं है, मतलब मेरा सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. इस केस में क्रैमर्स रूल की कहानी क्या बोलती है, या क्रेमर्स रूल की कहानी क्या बोलती है, कि अगर डेल नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस. क्योंकि डेल नॉन जीरो है ना, तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो मैं यहां पे रख सकती हूं. तो डेल 1 बाय डेल x होता है, डेल 2 बाय डेल y होता है, डेल 3 बाय डेल z होता है. तो अगर डेल नॉन जीरो आ गया, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, यू नो व्हाट इट इज गिवन बाय. अगर डेल जीरो आ गया एंड डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों जीरो आ गए, then the system may be consistent or inconsistent. If it is consistent, it will have infinitely many solutions. And case 3. Case 3 बोलता है if del is 0 and at least one out of del 1, del 2, del 3 is non-zero, then system is inconsistent with no solution. Yes, Preetam, very good यार, very very good. All right, लेकिन अगर D1, D2, D3 तीनों जीरो हो गए, राइट हैंड साइड वाली तीनों एंट्री जीरो हो गई, मतलब मेरा सिस्टम होमोजीनियस बन गया. और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं. दे ऑलवेज हैव सॉल्यूशंस, ईदर वन और इन्फिनिटली मेनी, बट दे नेवर हैव नो सॉल्यूशन. क्योंकि x इक्वल 0, y इक्वल 0, z इक्वल 0 हमेशा तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. दिस इज योर ट्रिवियल सॉल्यूशन. सो व्हेन del इज नॉट इक्वल टू 0, the system has unique solution, which is the trivial solution, in which case we say that 3 equations representing 3 planes are intersecting each other at just a single point, and that point is origin. ठीक है? अगर del 0 होता है, then system has non-trivial solution, that means it has infinitely many solutions, क्योंकि the 3 equations in that case representing 3 planes intersect, and the intersection comes out to be an infinite line जिसमें अनगिनत points बैठे हैं. They are representing the infinitely many solutions of the system. ठीक है? Got it? चलो यहाँ आते हैं. If the system of linear equations has infinitely many solutions, then what is this quantity equal to? Tell me, very very easy question. आपके पास एक non homogeneous system of equations दी हुई है. आपको बोला जा रहा है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है. मैंने बताया था इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस नॉन होमोजीनियस के केस में मतलब D जीरो है एंड D1, D2, D3 तीनों जीरो है. तो पहले तो हम D को जीरो कर देते हैं, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, राइट? ये रहा.
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। D0 एंड D1 D2 D3 0, तो D को 0 इक्वेट किया, सिर्फ बीटा अननोन था तो बीटा की वैल्यू -1 आ गई। एंड del 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, एक बार बीटा आ गया तो del 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, इससे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। infinitely many solutions means there are infinitely many triplets XYZ जो तीनों equations को simultaneously satisfy करते हैं, and hence 5 is the answer, क्योंकि alpha plus beta minus alpha beta will come out to be 5, है ना। तो यहां सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी थी कि अगर एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम के infinitely many solutions हैं तो D is 0 and along with that D1 D2 D3 all are 0, तो हमने D equal 0 से बीटा निकाला और D1 equal 0 से अल्फा निकाला। वैष्णवी, हाइपर गेमिंग, आकाश, परफेक्ट। अब यहां आ जाओ, values of lambda and mu such that the system of equations 1 2 3 has no solution। ये भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, तो नो सोल्यूशन मींस D is 0 and at least one of D1 D2 D3 is non-zero। Yes, Preetam, D is 0 and at least one out of D1 D2 D3 is non-zero। तो जब आप D को 0 इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? When you equate D with 0, let me write this here। देखो 1 1 1 3 5 5 and 1 2 lambda, ठीक है। इससे आपके पास लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, समझ में आया? D equals 0 करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड along with that either D1 should be non-zero or D2 or D3, at least one out of these three should be non-zero। लेकिन जब आप D1 निकालोगे ना तो वो आएगा, क्या आएगा भाई? 6 26 म्यू फर्स्ट कॉलम, दूसरा रहेगा 1 5 2 और तीसरा रहेगा 1 5 लैम्डा, लैम्डा इज 2। तो आप देख रहे हो सेकंड और थर्ड कॉलम सेम है, मतलब D1 तो 0 है, D1 तो 0 है, मतलब या तो D2 को नॉन जीरो होना पड़ेगा या D3 को नॉन जीरो होना पड़ेगा। जब आप D2 को नॉन जीरो रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। इनफैक्ट जब आप D3 को नॉन जीरो रख के भी सॉल्व करोगे तो आएगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। तो कंडीशन क्या थी नो सोल्यूशन की? D is 0 and at least one of D1 D2 D3 is non zero। D equal 0 से लैम्डा 2 आ गया। अब at least one out of D1 D2 D3 is non zero में से किसको नॉन जीरो लूं? D1 मैंने बना के देखा तो मैंने देखा यार ये तो 0 है, तो ये नॉन जीरो तो नहीं हो सकता, मतलब या तो D2 नॉन जीरो होगा या D3 नॉन जीरो होगा। D2 नॉन जीरो किया तो भी म्यू नॉट इक्वल टू 10 आ रहा है, D3 नॉन जीरो किया तो भी म्यू नॉट इक्वल टू 10 आ रहा है। D इज द करेक्ट आंसर, है ना प्रियंका? मैंने वही बोला, थोड़ा सा डेडिकेटेड समय क्रैमर्स रूल की कंडीशंस को याद करने में रख लो, इन्वेस्ट करो एंड यू विल बी डन, ठीक है। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is this. Two fair dice are thrown, the numbers on them are taken as lambda and mu, and a system of linear equations is constructed using lambda and mu. P is the probability that the system has a unique solution and Q is the probability that system has no solution. यहाँ पे भी non homogeneous system है। Unique solution की क्या condition थी? Unique solution की क्या condition थी? कि भाई D is not equal to 0, बस कुछ मत करो, D को not equal to 0 करो। What will you get? What will you get when D is not equal to 0? भाई you will get lambda not equal to 5. You will get, yes Bikram, anyone between D2 and D3. When you plug in D not equal to 0, you will get lambda not equal to 5, and lambda was one of the outcomes when you've thrown the die. If lambda is not equal to 5 means lambda can be 1 or 2 or 3 or 4 or 6. Correct? What is the probability of getting a unique solution? The probability of getting a unique solution is equal to the probability of getting these 5 outcomes out of the 6 outcomes, which is 5 by 6. है ना? Yes. And what about no solution? ये तो unique solution हो गया. What about no solution? मतलब D is 0 and at least one of D1, D2, D3 is non-zero.
अब d नॉट इक्वल टू 0 रख के लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 आ रहा था, तो d इक्वल 0 रखोगे तो लैम्डा 5 आ जाएगा, राइट? d इक्वल 0 से लैम्डा 5 आ जाएगा। एंड अलॉन्ग विथ दैट इधर d1 इज नॉन जीरो रखना पड़ेगा, या d2 नॉन जीरो रखना पड़ेगा, या d3 नॉन जीरो रखना पड़ेगा। क्या नॉन जीरो रखूं? मैं d3 नॉन जीरो रखूंगी, मैं d3 नॉन जीरो रखूंगी। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि d3 लिखते वक्त मैं थर्ड कॉलम को जो 1 3 लैम्डा है उसको 5 म्यू 1 से रिप्लेस करूंगी। मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा म्यू पे कंडीशन चाहिए। अगर मैं d1 नॉट इक्वल टू 0 रखती हूं तो लैम्डा तो प्रेजेंट रहेगा, मेरा फर्स्ट कॉलम 5 म्यू और 1 से रिप्लेस होगा, तो मुझे उस लैम्डा की जगह 5 रख के सॉल्व करना पड़ेगा ना म्यू के लिए। ऐसे ही अगर मैं d2 निकालती हूं तो मुझे सेकंड कॉलम को 5 म्यू 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में भी लैम्डा विल बी प्रेजेंट, तो लैम्डा की वैल्यू 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग म्यू का आंसर निकलेगा। पर आई वांट म्यू का आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, तो मैं जो थर्ड कॉलम है जिसमें लैम्डा बैठा है उसकी जगह मैं d1 d2 d3 रखूंगी, मतलब 5 म्यू 1 रखूंगी। मतलब मैं d3 को नॉन जीरो रखूंगी ताकि इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा मेरे को म्यू पे कंडीशन मिले। ठीक है, जब मैं ऐसा करती हूं तो आता है म्यू नॉट इक्वल टू 6, मतलब म्यू कैन बी 1 और 2 और 3 और 4 और 5। फॉर नो सोल्यूशन d शुड बी 0 and d3 should be non-zero, मतलब lambda 5 आना चाहिए, that means 1/6 is the probability, and along with that mu इन 5 में से कुछ एक आना चाहिए, मतलब 5/6 is the probability, मतलब Q comes out to be 5/36. Smart technique, right? So B is the correct answer. Coming to the very last topic, छोटू सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से खत्म करते हैं एंड वी विल वाइंड अप द सेशन। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, एंड इनवर्स के बारे में आपको पता है, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए व्हिच एग्जिस्ट्स इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। कूल? नाउ टेल मी, if P is this particular 3x3 matrix such that PQ is K times identity matrix of order 3 and the 2/3 element of Q is minus K by 8, determinant of Q is K square by 2, what is alpha square plus K square? Let's फटाफट अटैक। जब आप determinant of P find करोगे तो आपके पास क्या आएगा? Let's quickly find out determinant of P. Let me show this to you. देखो, determinant of P आता है 20 plus 12 alpha. And because P is invertible, this is non-zero, which implies P inverse exists. अब अपने को दिया है PQ is equal to K times identity matrix of order 3. दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दो P inverse से, तो Q will be equal to K times P inverse. But P inverse is nothing but adjoint of P upon determinant of P. अब प्लीज ध्यान से सुनना, this is K upon determinant of P, this is constant, and here you have adjoint of P. Adjoint of P is transpose of cofactor matrix of P. Correct? Correct? हमें given है 2/3 element of Q is minus K by 8. तो Q का 2/3 element minus K by 8 दिया है। यहां से 2/3 element कैसा दिखेगा? Can you tell me? K upon determinant of P तो रहेगा, ठीक है, चिल है। What about this matrix? इसका 2/3 element will be nothing but cofactor of 3/2 element of P. Correct? मतलब -5 का cofactor. What is that? Minus and then 3 alpha plus 4. Understood? तो यह आ गया माइनस K by 8 is equal to K upon determinant of P, और यहाँ आ गया माइनस ऑफ 3 alpha plus 4. तो माइनस माइनस कैंसल्स आउट, K कैंसल्स आउट. व्हाट इज इट दैट यू हैव? डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या था? रख दो यहाँ पे 20 plus 12 alpha. है ना? है ना? इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. Yes, hyper gaming, correct. Alpha की value is simply coming out to be -1. Am I correct? Alpha -1 आ गया. मतलब अगर मैं अब यहां पे एक बार
डिटर्मिनेंट ऑफ P पे जाऊं फिर से, इट इज 20 + 12 अल्फा, मतलब 20 - 12 मतलब 8। दूसरी चीज मुझे दी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज k²/2। ठीक है भाई, अपने को यहां गिवन है कि PQ = K टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट दोनों तरफ ले लो, व्हाट डू यू गेट? डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q = K³ टाइम्स 1, है ना? राइट क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ KA इज K⁴n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A, where n is the order of A. This property is what I have used here. अब डिटर्मिनेंट ऑफ P अपने को पता है 8 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q आ जाता है K³/8, पर डिटर्मिनेंट ऑफ Q अपने को दिया हुआ है क्या? K²/2. So this will be equal to K²/2. तो K² यहाँ पे 1 बचा, 4 बचा, दिस implies K is 4. Yes, आकाश, क्या बात है, क्या बात है। तो अल्फा का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, K का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। आंसर इज 17 यू गाइस। ठीक है भाई, आपने पहले बोला था, सही बोला था, तो आप भी सही हो। ठीक है, 17 इज द आंसर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? नाउ लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे बॉम्बार्ड होने वाली हैं खूब सारी प्रॉपर्टीज, खूब सारी। देखो ध्यान से एक प्रॉपर्टी देखो, A times adjoint of A is determinant of A times identity matrix of order n, where n is the order of A. यहां से मुझे मिलता है कि adjoint of A is equal to determinant of A times A inverse, करेक्ट? अब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में A की जगह ये वाली मैट्रिक्स रख दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? adjoint of 2A inverse is equal to determinant of 2A inverse times 2A इनवर्स का इनवर्स, है ना? है ना? अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ KA इज K⁴n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इनवर्स विल बी 2 का क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, क्योंकि A इनवर्स का ऑर्डर 3 है, दिया हुआ है। A का ऑर्डर 3 है, 3×3 है, तो A इनवर्स का भी 3×3 है। और यहाँ क्या हो जाएगा? KA का इनवर्स इज 1/K टाइम्स A इनवर्स, है ना? हाय हिमांशु। सो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स A इनवर्स का इनवर्स। नाउ 2³ एज इट इज, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ A, 1/2 एज इट इज, A इनवर्स का इनवर्स मीन से ये 2 गया, यहां बचा 2 का स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स A, राइट? ये किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स। पर अपने को तो थ्राइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स चाहिए, तो दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 विल गिव यू 12। और इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, क्या हो जाएगा? 12 डिटर्मिनेंट ऑफ A का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना? तो ये गया और ये गया एक बार, आपके अपने पास आया 12 का क्यूब अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। दैट्स द आंसर। आंसर इज 12 का क्यूब अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं। A कैसा दिखेगा प्लीज टेल मी? ये तीनों डायगोनल एंट्रीज तो 2 है, बिकॉज I = J मीन्स 2, तो 1 1th एंट्री, 2 2th एंट्री एंड 3 3th एंट्री विल बी 2। ये जो 3 जगह जहां मैंने टिक लगाया है, वहां पर व्हाट इज हैपनिंग? I have 1 2th entry, 1 3th entry and 2 3th entry, मतलब I is less than J। तो पहली वाली डेफिनेशन यूज होगी, -1 की पावर 2 - 1 मीन्स यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ -1। सिमिलरली अब जहां मैंने 3 जगह टिक लगाया है, दे आर 2 1th, 3 1th एंड 3 2th, मतलब I is greater than J, तो ये तीसरी वाली डेफिनेशन यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? -1 की पावर 3, मतलब -1, फिर यहाँ 1 और यहाँ -1। ठीक है, और जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल के उसका स्क्वायर करोगे, तो यू विल सिंपली गेट व्हाट? 16, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A विल कम आउट टू बी 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16। ऑल राइट गाइज, सो यहाँ पे आ चुका है 12 क्यूब अपॉन 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 108। Got it? So 108 is the final answer to this question, and this is where we have come to the end of this particular class, क्योंकि सारे के सारे 5 concepts हमने पढ़ लिए हैं
उनके बेसिस पे खूब सारे अमेजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. Yes, Aakash, bang on. And with this, it's a wrap, you guys. You have a session at 8 p.m. Please do not forget on physics. Okay, and it's me, Bhumika, on this note. Wrapping up, signing off. We'll meet you super soon again. Till then, take care and keep learning. Bye-bye.